حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ رائزنگ 2047 میں تلنگانہ سے شرکت داری، ورلڈ اکنامک فورم کا اتفاق، چیف منسٹر نے صدر فورم سے کی ملاقات۔ بالاپور میں دائیں بازو کی دھرم رکشا سبھا کو ہائی کورٹ کی اجازت۔ حیدرآباد کی پرامن فضا پر خدشات، لو جہاد تا اقتصادی جہاد کے نعروں پر اجتماع، ریاستی حکومت کے اعتراضات کے باوجود ریلی کی منظوری۔ تلنگانہ پولیس کا شہری مرکوز نیا نظام، اب حساس جرائم میں گھر بیٹھے FIR ہوگی درج، متاثرین کو پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں، پولیس خود گھر، ہاسپٹل یا محفوظ مقام پر پہنچے گی۔ بلدیاتی انتخابات سے قبل کانگریس کو لگا بڑا جھٹکا، چنور کے سینئر قائد مولا راجی ریڈی BRS میں شامل، میدک میں بھی ہریش راؤ کی موجودگی میں کانگریس قائدین کی BRS میں شمولیت۔ گولکنڈہ قلعہ میں واقع 400 سالہ قدیم کٹورا ہاؤس کی بحالی پر ہائیڈرا کی توجہ مرکوز، کمشنر رنگناتھ کا کٹورا ہاؤس کا دورہ، مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے تلنگانہ رائزنگ 2047 میں تلنگانہ سے شرکت داری کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں تلنگانہ پویلین میں فورم کے صدر نشین جیرمی جرکنس اور مس منجو جارج سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ رائزنگ 2047 کی تفصیل سے واقف کروایا۔ چیف منسٹر نے ان اقدامات کی تفصیل بھی بتائی جو ریاست کی معیشت کو $3 ٹریلین تک پہنچانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ اس ملاقات کے موقع پر ریاستی وزراء D سریدھر بابو اور P سرینیواس ریڈی بھی موجود تھے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حکومت کے منصوبوں اور پروگرام کی تفصیلات پیش کی اور کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ تلنگانہ کو $3 ٹریلین کی معیشت میں تبدیل کیا جائے۔ اس کے لیے حکومت کی جانب سے لگاتار اور مؤثر اقدامات کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے اس جدوجہد میں تلنگانہ سے اشتراک کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات کو قطعیت دی جا رہی ہے۔ تلنگانہ عالمی سطح پر شرکت داری کے نئے باب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم ڈاووس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سوئٹزر لینڈ کے کونسل آف ووڈ کی چیف منسٹر کرسٹل لورینس براڈارڈ کے ساتھ ملاقات کی اور بھارت سوئٹزر لینڈ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت ثقافت، تعلیم، ہنر کی ترقی، ہاسپٹیلٹی اور کھیتوں میں تعاون کے موقع پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن کے تحت حیدرآباد میں نیا دنیا کا پہلا سوئس مال قائم کرنے کی تجویز پیش کی، جسے سوئس وفد نے خوش آمدید کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے کھیلوں کے شعبے میں تعاون اور نوجوانوں کی شمولیت کے امکانات بھی دریافت کیے، جبکہ خواتین کی خود کفیل تنظیموں کے ذریعے خود مختاری کے فروغ میں تلنگانہ کی مدد میں سوئس وفد نے دلچسپی ظاہر کی اور اسبیل مورے نے تصدیق کی ہے کہ سوئس ٹیم جلد حیدرآباد کا دورہ کرے گی تاکہ مزید تعاون کے مواقع کا جائزہ لیا جا سکے۔ تلنگانہ کو ڈیجیٹل اور سرمایہ کاری کی دنیا میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں تلنگانہ رائزنگ وفد نے ورلڈ اکنامک فورم اجلاس ڈاووس میں UPC وولٹ، UPC رینیوبل گروپ اور والٹ ڈاٹا سینٹرز کا مشترکہ منصوبے کے ساتھ بھارت فیوچر سٹی میں 100 میگا واٹ AI ریڈی ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کے لیے معاہدہ کیا، جس پر اگلے 5 سالوں میں 5,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا ہوگی۔ یہ منصوبہ 100 میگا واٹ RTC قابل تجدید توانائی سہولت سے منسلک ہوگا اور تلنگانہ کی گرین اوپن ایکسیس فریم ورک کے تحت توانائی کی فراہمی کرے گا، جس سے تعمیر کے دوران 3,000 سے زائد اور آپریشن کے دوران 800 سے زائد ملازمتیں پیدا ہوں گی۔
हैदराबाद की पुरअमन फिजा को मुतासिर करने की कोशिश तेजी पकड़ती जा रही है। हैदराबाद के बालापुर में 24 जनवरी को मुनाक़द होने वाली दाएं बाजू की तंजीम भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के इज्तिमा धर्म रक्षा सभा को तेलंगाना हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है। अदालत ने रियासती हुकूमत के एतराज़ात सुनने के बाद इजाजत दी, जिसके तहत तंजीम नौजवानों, खवातीन और मुकामी हिंदू कम्युनिटी के तहत के दावों के साथ लव जिहाद, इक़्तिसादी जिहाद, खुराक जिहाद, अद्वियात जिहाद और ज़मीन से मुताल्लिक़ उमूर पर आवाज़ उठाएगी। गणेश उत्सव समिति ने इज्तिमा को रास्तबारी और अदल की फतह करार दिया और अपने बयान में कहा कि लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुस्लिम गैर कानूनी आबादकार हैदराबाद में मुकीम हैं और ये शर्म की बात है कि रियासती हुकूमत अवाम की हिफाजत के बजाय गैर कानूनी आबादकारों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे रही है। तंजीम ने हैदराबाद को दोबारा भाग्यनगर नाम देने की अपील की और नौजवानों की लत, ख़वातीन के मजहब की तब्दीली, खुराक की जानबूझकर खराबी और मंदिरों की ज़मीन पर मुबैना कब्जे जैसे मामलात को भी ज़ेरे बहस लाने का ऐलान किया और इज्तिमा जागो भाग्यनगर चलो बालापुर के नारे के साथ मुनाक़द होगा। तेलंगाना पुलिस ने रियासत में पहली बार एक मुकम्मल शहरी मरकूज निज़ाम में मुतारफ़ करवाया है, जिसके तहत हसास और संगीन नवयत के जुराइम में मुतासरीन या वाकिफ अफराद को पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि पुलिस मुतासरा के घर, हॉस्पिटल, जुर्म के मुकाम या इनकी पसंद की किसी महफूज जगह पर पहुंचकर FIR दर्ज करेगी, इब्तदाई बयान और मुतल्लिका कार्रवाई करेगी। इस निज़ाम के तहत मुतासरा 100 या 112 पर कॉल करके पुलिस को इत्तला दे सकता है। पुलिस फौरन जाए की शिकायत और बयान रिकॉर्ड करेगी, सबूत महफूज करेगी और बाद में मुतल्लिका स्टेशन पर FIR को रस्मी तौर पर दर्ज कराएगी, जबकि FIR की कॉपी भी वही मुतासरा को फराहम होगी। ये पहल खुसूसी तौर पर पॉस्को जैसे बच्चों के खिलाफ जुराइम, खवातीन और बच्चों के खिलाफ जुराइम, STSC जुल्म व तशद्दुद एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और रैगिंग एक्ट जैसे क़वानीन के तहत आते हुए मामलात के लिए तैयार की गई है, ताकि मुतासरीन को दिमागी दबाव, बदनुमा दाग और गैर ज़रूरी सफ़र से बचाया जा सके और सबूत जल्द जमा हो सके ताकि जल्द इंसाफ मुमकिन हो। इसके लिए पुलिस ने मियारी तरीक़ेकार तैयार करके पूरे रियासत में नाफिज किए हैं और अफसरान की तरबियत भी मुकम्मल की जा रही है। इससे अवाम का अदालती निज़ाम पर एतमाद बढ़े और बरवक्त रिपोर्टिंग में इजाफा मुतवक्के है। हैदराबाद के इंचार्ज व वजीर पूनम प्रभाकर ने शहर के तरक्याती कामों का एक आला सतही के इजलास में जायजा लिया। ये जायजा इजलास हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मुनाक़द हुआ। जिले कलेक्टर हैदराबाद D हरिचंदना, एडिशनल कलेक्टर जितेंद्र रेड्डी और मुख्तलिफ महकमाजात के अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में हैदराबाद में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया गया और ताहाल इन कामों की तकमील हुई पेशरफ्त पर भी गौर किया गया। SC, ST, BC और अक़लियती बहबूद के महकमाजात की कारकर्दगी पर गौर ख़ौस करने के अलावा गुरुकुल, वेलफेयर, हॉस्टल्स, तालीम, शोबा, तिब वगैरह की कारकर्दगी पर अहदेदारों से रिपोर्ट्स हासिल की जाएंगी। इसके अलावा सरकारी स्कीमात पर अमलावरी का जायजा लिया गया। इस्तेफादा कुनिंदगान के ताल्लुक से भी मालूमात हासिल की गई। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सरकारी स्कीमात पर अमलावरी में किसी तरह की कोताही ना करे और सरकारी स्कीमात के फवायद से अवाम को मुस्तफ़ीद करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। हुकूमत तमाम तबक़ात की तरक्की की पाबंद है। कांग्रेस पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात के नोटिफिकेशन से पहले बड़ा धचका लगा है। चेन्नूर से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक़ मुत्तहदा आदिलाबाद जिले के ZP नायब चेयरमैन मुल्ला राजी रेड्डी ने अपने हामियों के हमरा BRS वर्किंग सदर KT रामाराव की मौजूदगी में BRS पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर KTR ने इन्हें गुलाबी कलमा देकर पार्टी में खुशामदीद कहा और बाकायदा इस्तकबाल किया। KTR ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में सिर्फ स्कीमें खत्म हुई और स्कीमों की जगह स्कैंडल्स ने ले ली है। खास तौर पर सिंगारेनी स्कीम में मुल्क की तारीखी में ना देखे जाने वाले बड़े धोखे सामने आए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत ने नए क़वानीन के जरिए सिंगारेनी में टेंडर्स को काबू में किया और अहम कॉन्ट्रैक्ट्स वज़ीर आला के रिश्तेदारों को दिए गए। KTR ने कांग्रेस की नाकाम पॉलिसियों, वादे के खिलाफ वर्जियों,
फीस रियम्बर्समेंट में 12,500 करोड़ रुपए की बकायाजात और अवामी तरक्याती मंसूबों की बंदिश पर शदीद तनकीद की और मुतालबा किया कि इस तमाम सियासी बदउनवानी की जिम्मेदारी लेते हुए वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी जवाब दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दहली की पार्टी हैं, लेकिन एक सिर्फ धोखा करती है, दूसरी सिर्फ माल लूटती है, जबकि बीआरएस ने अवामी तरक्की और रियासत की दौलत में इजाफा किया है। వాళ్ళ వాటాల కోసం అనుకుని ఆయన దొంగలు నిన్న బయటపడ్డారు. ఎట్లా బయటపడ్డారు, ఏమైందట అంటే అక్కడెక్కడో ఒరిస్సాలో ఏదో బ్లాక్ ఉందట, కోల్ బ్లాక్. ఆ బ్లాక్ 9 అట. ఆ 9 బ్లాక్ కోసం ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇద్దరు మంచిగా కేకును కోసుకున్నారట. కోసుకుంటే ఇంకో మూడో మంత్రి, ఆయన పేరైంది వెంకటరెడ్డి వచ్చి, అగో మీ ఇద్దరే తింటారా కేకు, నాకు కూడా ఒక ముఖ్యరా అని వెంకటరెడ్డి అడిగినాడు. వెంకటరెడ్డి అడిగితే, అగో నువ్వెట్లా అడుగుతావా నువ్వు అని చెప్పి ఆయన మీద ఉప ముఖ్యమంత్రి గారికి దగ్గరగా ఉండే ఛానల్లో ఒక స్టోరీ వేసిరు. ఈయన లంగ పనులు చేస్తుండు, దొంగ పనులు చేస్తుండే, ఏదో పనులు చేస్తుండని స్టోరీ వేసిరు. వేసేవరకు ఈయన తెల్లారి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కన్నీరు గార్చి ఓహో ఆహా ఓహో నేడిసి ఈయన కూడా రజనీకాంత్ లెవెల్లో యాక్టింగ్ చేసి నన్ను కావాలంటే ఇసమిచ్చి చంపుర్రి కానీ ఇట్లా చేయకుండ్రి, నేను చాలా మంచోన్ని అని ఈయన యాక్టింగ్ చేసిండు. చేసే వరకు ముఖ్యమంత్రి ఏం చూసిండు, ఒక్క దెబ్బకు 2 పిట్టలు దొరికేటట్టున్నాయి ఇలా అని చెప్పి ఇంకొక పేపర్ ఆయనకు చెప్పి వీళ్ళిద్దరి మీద రాపిచ్చిండు. రాపిచ్చే వరకు ఉప ముఖ్యమంత్రికి మండింది, అగో ఇట్లా చేస్తారు, నన్ను ఇంత మాట అంటావా, నన్ను నేను దోపిడీ చేస్తా అంటున్నావా, నువ్వు దోసుకుంటుందంతా నువ్వు, నీ కుటుంబం, నీ అన్నదమ్ములు, మమ్మల్ని అంటావా అని చెప్పి ఆయన ఉప ముఖ్యమంత్రి తెల్లారి రద్దు చేసి పారేసి. రద్దు చేసినాక ఏమైంది, మన నాయకుడు హరీష్ రావు గారు ఆయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టిండు. అరే ఇది ఒకటే ఎట్లా రద్దు చేస్తావురా భయ్, మరి అన్ని ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా రద్దు చేయని పెట్టిండు సింగరేణిలో. ఇప్పుడు ఇక కుడితిలో వాడు ఎలక లెక్క కొట్టుకుంటారు ఎక్కడోడు అక్కడ. ఒకటి స్విట్జర్లాండ్ వీకిండు, ఇంకోటి అటేటో వేయండు, ఇంకోటి ఇటేటో వేయండు, కానీ ఎవ్వడు తేలుగుట్టిన దొంగలేలు ఒక్కడు మాట్లాడతలేడు నిన్నటి నుంచి. ఏంద్రాబాయ్ అంటే ఇక డైవర్షన్ గేమ్ ఆడాలి. అక్కడ అట్లా మాట్లాడగానే దొరికిరుగా దొంగలు, ఇక వెంటనే నోటీస్, నడు హరీష్ రావు నువ్వు పోలీసుల ముంగట కూర్చో. దేనికి రాబాయి కూర్చున్నాడు అంటే 2 ఏళ్ళకి అదే కార్తీక దీపం సీరియల్ ఉంటుంది, దాని లెక్క నడుతుంది కథ. అది ఒడవది తెగది, రోజు ఒకటే కథ ధారావాహిక. फोन टैपिंग ఏం ట్యాపింగ్, ఎవంది ట్యాపింగ్, ఎక్కడ ట్యాపింగ్. बीआरएस रुकनी असम्बली व साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में गाँव की तरक्की रुक गई है और फसलों की हालत अबतर है। फंड्स की कमी के बायस तरक्याती काम मुतासिर हो गए हैं। आज मुत्तहदा जिले मेदक के कई इलाकों के कांग्रेस कारकुनों ने हरीश राव से मुलाकात करके बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुत्तहदा जिले मेदक में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया जाएगा। हरीश राव ने इन सभी कारकुनों और कायदीन का गुलाबी स्कार्फ पहनाते हुए बीआरएस में इस्तकबाल किया। हरीश राव ने कहा कि केसीआर दौरे हुकूमत में तेलंगाना को शानदार तरक्की दी गई थी, जबकि कांग्रेस दौर में फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं और गाँव की तरक्की रुक सी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने फंड्स जारी न करते हुए तरक्याती कामों और सरगर्मियों को ठप कर दिया है। हरीश राव ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। हैदराबाद में मुख्तलिफ तालाबों और झीलों को बहाल करने के लिए लगातार इक़दामात के बाद हाइड्रा की जानिब से अब तारीखी किला गोलकुंडा में वाक़े 400 साल कदीम कटोरा हाउस को बहाल करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाने लगी है। कमिश्नर हाइड्रा AB रंगनाथ ने दीगर अहदेदारों के साथ तारीखी किला गोलकुंडा में वाक़े कटोरा हाउस का दौरा किया। उन्होंने अतराफ व अकनाफ का भी मुशाहिदा किया और कहा कि हाइड्रा की जानिब से कटोरा हाउस को भी बहाल करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने तयक़ुन दिया कि कटोरा हाउस को बहाल करने में हाइड्रा का मुकम्मल ताउन हासिल रहेगा। वाज़ेह है कि हाइड्रा की जानिब से शहर में तालाबों और झीलों को बहाल करने में हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। बदकमा कोंटा को बहाल किया गया और बम रुकनोतोला तालाब को भी बहाल कर दिया गया है। बदकमा कोंटा अवाम के लिए खोल दिया गया है, जबकि बम रुकनोतोला तालाब को बहुत जल्द अवाम के लिए खोला जाने वाला है। हाइड्रा ने अब तारीखी कटोरा हाउस को बहाल करने के इक़दामात का फैसला किया है। हाइड्रा की जानिब से शामिर पेट में नाजायज कब्जाजात को बर्खास्त कर दिया गया है। हाइड्रा के अहदेदारों ने अवामी शिकायत का जायजा लेने के बाद फ्रेंड्स कॉलोनी शामिर पेट मेचल मलकाजगिरी जिले में इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी। मुकामी शहरियों ने यहां नाजायज कब्जाजात की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस टीम के साथ यहां पहुंचकर हाइड्रा ने इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी और 20 फीट की रोड पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई एक कंपाउंड वॉल को मुनहदिम कर दिया।
हाइड्रा के अहदेदारों ने इंतबाह दिया कि अगर सरकारी अराजियात या सड़कों वगैरह पर कब्जा किया जाता है तो हाइड्रा की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाजायज कब्जात को बर्खास्त कर दिया जाएगा और कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। हाइड्रा ने सरकारी अराजियात के अलावा सड़कों और आम रास्तों पर कब्जात को भी बर्दाश्त न करने का भी ऐलान किया है और कहा कि अवाम की आमदरफ्त में रुकावट पैदा नहीं की जानी चाहिए। 8वें निज़ाम हैदराबाद मीर बरकत अली खान मुकरम जा की हयात व खिदमात पर मबनी एक मुनफरिद और दस्तावेजी किताब का इजरा आज जुमेरात को तारीखी चौमहला पैलेस में अमल में आया, जिसे खानदान आसिफ जाही के मौजूदा सरबराह नवाब अजमत जा ने जारी किया। ये किताब मारूफ माहिर तहफ़्फ़ुज़ आसार क़दीमा और मुसन्निफ़ा अनुराधा एस नायक की तसनीफ है और जो चौमहला पैलेस ट्रस्ट की जानिब से शाया की गई है, जिसमें 250 से ज़ायद नायाब और गैर शाया शुदा तस्वीर, तारीखी दस्तावेज़ात और ज़ाती यादगार अशिया शामिल हैं, जिनका बड़ा हिस्सा चौमहला पैलेस कलेक्शन और मुकरम जा के अहले खाना के ज़ाती ज़ख़ीरे से लिया गया है, जबकि बाद के दौरे की मुतअद्दिद तस्वीर प्रिंस आज़म जाह के फोटोग्राफी का शाहकार है। ये किताब मुकरम जा बहादुर की विरासत को खराज अक़ीदत पेश करती है और इस खुसूसी नुमाइश के साथ शाया की गई है, जिसका इफ्तिताह इनकी यौम पैदाइश 6 अक्टूबर 2025 को किया गया था। मुकरम जा जो 6 अक्टूबर 1933 को फ्रांस में पैदा हुए, आखिरी तस्लीम शुदा निज़ाम हैदराबाद रहे और उन्होंने आज़ादी के बाद बदलते आईनी व जमहूरी हालात से हम आहंग रहते हुए सादा तर्ज ज़िंदगी अख्तियार की, कौमी खिदमत अंजाम दी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर रहे और मुतअद्दिद फलाही इदारे कायम किए। अनुराधा एस नायक की ये तसनीफ शाही रियासत हैदराबाद के जमहूरी हिंदुस्तान में इंज़माम के अहद का एक कीमती बसीरी व तारीख़ी रिकॉर्ड है, जबकि नुमाइश बदस्तूर अवाम के लिए चौमहला पैलेस में जारी रहेगी। My sister and I have dedicated this book to the people of Hyderabad, and I hope that people will want to look at it and buy it and see the photos. There are a lot of personal photos that we've taken that have never been seen before. So it should be quite interesting for everyone to see maybe a different side of my father that no one else would have really noticed. Anyway, thank you, and I shall proceed to open the book now. ये किताब आज His Exalted Highness अज़मत जा बहादुर रिलीज़ किए हैं और ये किताब एक्सक्लूसिवली मुकरम जा बहादुर के बारे में है, लाइफ्स एंड टाइम्स ऑफ मुकरम जा बहादुर। इसमें बहुत नायाब पिक्चर्स है और मैटर है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है और इससे समझिए आप मिस अनुराधा नायक समझिए इसे कंपाइल किए हैं और इसको एक बहुत बेहतरीन किताब की शक्ल में पेश किए हैं। आज ये रिलीज़ हुआ है और 24 से हैदराबाद लिट फेस्ट जो होने वाला है वहाँ से ये पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगी किताब। इसमें कुछ ऐसे करस्पॉन्डेंसेस है, ऐसे पिक्चर्स है जो कभी देखने गए हैं और ऐसे मैटर्स है जो लोग को पता ही नहीं था। तो ये पब्लिक के लिए, हैदराबादीज़ के लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए ये एक बहुत अमेजिंग समझिए आप कंपाइल्ड किताब है और पहली किताब है एक्सक्लूसिवली ऑन द निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद, जो चौमहला पैलेस ट्रस्ट इसे समझिए आप थ्रू मिस अनुराधा नायक इसे कंपाइल किया गया है और रिलीज़ किया गया है आज। सर ये किताब अनुराधा मैम जिस तरीके से लेकर मुकरम जो अनुराधा मैम तो मिस अनुराधा नायक जो है पैलेस के साथ, ट्रस्ट के साथ, प्रिंसेस एसरा साहिबा के साथ समझिए काफ़ी तकरीबन 2 डिकेड से समझिए उनका साथ रहा है और शी इज़ बीन अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, तो उन्हें काफ़ी मालूमात है, शौक़ है, ख्वाहिश थी और मालूमात करने की। और उसके अलावा उनकी फैमिली जनरेशन से दे वर डॉक्टर्स फॉर द निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद, तो वो भी समझिए आप रिश्ता था फॉर जनरेशंस। तो ये बहुत अच्छा काम अंजाम दिया गया है। शहर के अवाम को शिद्दत की सर्दी के बाद अब बहुत जल्द गर्मी की लहर का भी सामना करना पड़ेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से पेश क़ियासी की गई है कि शहर में आइंदा हफ्ते से मौसम की गर्मी का एहसास शुरू हो जाएगा। महकमा ने कहा कि फिलहाल दोपहर के वक्त में दर्जे हरारत में मामूल के मुताबिक चल रहा है, जबकि रात के वक्त और सुबह के अव्वलीन सातों में दर्जे हरारत में कमी दर्ज की जा रही है।
ताहाल शहर और अतराफ के इलाकों में मौसम ने शिद्दत इख्तियार नहीं की है और अब बतरदीश दर्जे हरारत में इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ। महकमा की पेश क़यासी में कहा गया है कि आइंदा हफ्ते से रात और सुबह की अव्वलीन सातों के दर्जे हरारत में भी इजाफा होगा और आवाम को गर्मी का एहसास होने लगेगा। महकमा ने कहा कि कोहर का सिलसिला भी अब खत्म हो जाएगा और रात के दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा सकता है। शहर के मौसम में आइंदा हफ्ते से वाज़ेह तब्दीली महसूस की जाएगी। आदिलाबाद में मुजवजा म्युनिसिपल इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी दौरान वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस रुकन और हीरा वेजिटेबल मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदर शेख रफीक कांग्रेस टिकट के मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने डीसीसी सदर डॉक्टर नरेश जाधव और हल्के इंचार्ज के श्रीनिवास रेड्डी को बाकायदा दरख्वास्त पेश करते हुए कहा कि मौजूदा काउंसिलर ने वार्ड की तरक्की को नजरअंदाज किया, जिससे अवाम में नाराजगी है। शेख रफीक ने यकीन दिलाया कि टिकट मिलने की सूरत में वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के विजन के मुताबिक सड़कों, नालों, बिजली, साफ पानी और फलाही स्कीमात की फराहमी को यकीनी बनाते हुए तमाम तबकात को साथ लेकर वार्ड की हमाजहत तरक्की के लिए काम करेंगे। मैं शेख रफीक आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ 32 वार्ड नंबर से काउंसलर के लिए और मैं अपने डीसीसी चेयरमैन नरेश जाधव साहब को और इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब को एप्लीकेशन फाइल किया हूँ टिकट के लिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह टिकट मुझे मिलेंगी और मैं आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जीत कर जो महिला के हमारे जो प्रॉब्लम्स है आने इससे पहले जो हम जो उम्मीदवार को जीत के लाए थे उसमें तो कोई काम नहीं हुआ। आज भी हमारे रोड और नाली जो जैसे थे वैसे ही हर घरों में पानी घुसता है, जैसे कि सुनार गली हो गई, गुलशन कॉलोनी हो गई, स्लीपर कॉलोनी हो गई। ये सब जगहों पर ना रोड की फैसिलिटी है, ना पानी की है, ना नाली की है, कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने इक़्तिदार में रहने के बावजूद भी ये काम नहीं हो सके। इंशाअल्लाह मैं अवाम से उम्मीद करता हूँ कि मैं कांग्रेस की टिकट लेकर आऊँगा और जीत कर इंशाअल्लाह आप लोगों के काम करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे वोट दो, वोट फॉर राइट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत है और कांग्रेस के हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह राशन कार्ड का काम हुआ, इंदिरम्मा इल्लू के काम हुए। इसी तरह जितने भी स्कीम्स है, मैं जैसे शादी मुबारक हो, कल्याण लक्ष्मी हो और इंदिरम्मा इल्लू हो, जो भी ऐसे स्कीम्स हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत के हर एक घर को जाके हम लोग कार्रवाई करेंगे, देखेंगे किसको आया किसी को नहीं आया। अगर नहीं आया तो हम कोशिश करके इंशाल्लाह सबको दिलाएंगे और उम्मीद है कि कांग्रेस हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब जो जीत कर आने के बाद जो काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके इंस्ट्रक्शन पे हम लोग वैसे ही काम करेंगे और अवाम के लिए कभी भी हम हाजिर रहेंगे काम के लिए, क्योंकि अवाम सुनती है लोग को काम के वास्ते। तो हम इंशाल्लाह पूरा अवाम का काम करेंगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ अवाम से कि एक बार मुझे मौका दे। ज़िले आदिलाबाद के मशहूर दरगाह हज़रत सैयद सिराजुद्दीन औलिया अलमारूफ राजन शाह वली बाग सवार चांदा शरीफ के मौके पर सालाना उर्स के सिलसिले में मुख्तलिफ मजहबी व रूहानी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान ने प्रेस क्लब आदिलाबाद में मीडिया को बताया कि शाही संदल 25 जनवरी 2026 को जामा मस्जिद से चांदा शरीफ तक निकाला जाएगा। सालाना महफिल समा 27 जनवरी को बाद नमाज इशा मुनक़द होगी, जिसमें हैदराबाद के मशहूर खव्वाल इसरार निज़ामी ब्रदर्स शिरकत करेंगे और उर्स शरीफ 29 जनवरी बरोज़ जुमेरात रात 9 बजे शजात अजीम साबरी की शानदार खवाली के साथ बड़े पैमाने पर मुनक़द होगा। दरगाह कमेटी के सदर मोहम्मद अशरफ और नायब सदर ख्वाजा सिराजुद्दीन समेत दीगर जिम्मेदारान ने अवाम और अक़ीदतमंदों से अपील की है कि वो अपने दोस्त व अहबाब के हमरा शिरकत करके उर्स शरीफ को कामयाब बनाएं, जबकि मीडिया नुमाइंदों के लिए ताम और खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। साल की तरह इस साल भी हज़रत सैयद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ बाग सवार चांदा शरीफ सरकार का उर्स शरीफ सबको मुबारक। ये इसी महीने के 29 जनवरी को और 9 शाबान को उर्स शरीफ मनाया जाएगा, जिसमें ये हफ्ते भर का जो प्रोग्राम है कुछ इस तरह से रहेगा। शाही संदल 5 शाबान
बरोज़ इतवार 25 जनवरी को बाद नमाज इशा जो जामा मस्जिद से निकलेगा, जिसमें नागपुर से सलमान भाई इनकी पूरी टीम अपना कलाम सुनाएगी, जो जामा मस्जिद से होते हुए सुहाग महल से होते हुए पुराना बस स्टैंड से अशोक रोड से हर साल की तरह चांदा दरगाह शरीफ पे इख्तिताम होगा। उसके बाद चांदा दरगाह पर महफिल समा का इंतज़ाम किया गया है, जो 27 जनवरी और 7 शाबान बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा जो चांदा दरगाह पे मुनाक़िद होगा, जिसमें हैदराबाद के मारूफ खवाल असरा निज़ामी ब्रदर्स अपना कलाम सुनाएंगे और उसी दिन लंगर का भी इंतज़ाम रहेगा। इसके बाद में जो उर्स है वो 29 जनवरी बरोज़ जुमेरात 9 शाबान को बाद नमाज इशा खवाली का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मशहूर खवाल जनाब सुजात अजीम साबरी साहब अपना कलाम सुनाएंगे। हम तमाम ही कमेटी की तरफ से हज़रत के तमाम चाहने वालों से, जो आदिलाबाद के शहंशाह है, हज़रत के चाहने वालों से बगैर मज़हब व मिलत फ़र्क सबसे हम अदबन गुजारिश करते हैं, ये तमाम प्रोग्राम में आकर हज़रत का फैज़ हासिल करें। खुदा हाफिज़। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक खानगी बस एक कंटेनर लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए और 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक खानगी बस 36 मुसाफिरों के साथ नेल्लूर से हैदराबाद आ रही थी कि इसका टायर अचानक फट पड़ा। ड्राइवर बस पर काबू नहीं रख सका और रोड डिवाइडर के दूसरी जानिब बस चली गई और सामने से आई हुई एक कंटेनर लॉरी से टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में भयानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में दोनों ही गाड़ियों में आग लग गई। महलूकीन में बस ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर और लॉरी का क्लीनर भी शामिल है और इनकी नाच इस हद तक जल गई है कि इनकी शनाख्त तक मुश्किल हो गई है। करीब से गुजरती हुई एक DCM के ड्राइवर ने मिसाली काम करते हुए अपनी गाड़ी रोकी और इसने बस के दरवाजे तोड़कर खोल दिए। इसके नतीजे में कई मुसाफिरीन बहिफाजत नीचे उतरने में कामयाब रहे। पुलिस ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर राहत व इमदाद के काम किए और जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया। కానీ ఈ యాక్సిడెంట్లో ముగ్గురు, ఒక బస్ డ్రైవర్, దెన్ ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన లోరీ డ్రైవర్ అండ్ లోరీ క్లీనర్, ముగ్గురు పర్సన్స్ దే హ్యావ్ పాస్డ్ అవే. దేర్ బాడీస్ ఆర్ ఆల్సో బీయింగ్ రైట్ నౌ మూవ్డ్ టు హాస్పిటల్. So that is the information which we have right now. Traffic has been cleared. Traffic is moving smoothly. For now, bus and lorry scene lo మేము ఉంచాము. RFSNL and FSL teams ఇప్పుడు కర్నూలు నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు చూసి ఫైర్ కాజ్ ఇప్పుడు చూస్తే బికాస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఓన్లీ, బికాస్ బోత్ బస్ అండ్ లోరీ బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి, సో దానివల్ల అవి ఉండొచ్చు. కానీ అది RFSL అండ్ FSL టీమ్స్ వచ్చి వాళ్ళే ఇది కన్ఫర్మ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వి గెట్ ఫ్రమ్ నౌ. इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना राइजिंग 2047 में तेलंगाना से शिरकत दारी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इत्तेफाक, चीफ मिनिस्टर ने सदर फोरम से की मुलाकात। बालापुर में दाएं बाजू की धर्म रक्षा सभा को हाई कोर्ट की इजाजत, हैदराबाद की पुरअमन फिजा पर खदशात, लब जिहाद ता इख्तिसादी जिहाद के नारों पर इज्तिमा, रियासती हुकूमत के एतराज़ात के बावजूद रैली की मंजूरी। तेलंगाना पुलिस का शहरी मरकूज नया निज़ाम, अब हसास जराइम में घर बैठे FIR होगी दर्ज, मुतासरीन को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, पुलिस खुद घर, हॉस्पिटल या महफूज मुकाम पर पहुंचेगी।
बल्दियाती इंतखाबात से काबिल कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। चिन्नौर के सीनियर कायद मौला राजी रेड्डी बीआरएस में शामिल। मेदक में भी हरीश राव की मौजूदगी में कांग्रेस कायदीन की बीआरएस में शमूलियत। गोलकुंडा किला में वाक़े 400 साल कदीम कटोरा हाउस की बहाली पर हाइड्रा की तवज्जो मरकूज। कमिश्नर रंगनाथ का कटोरा हाउस का दौरा, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।